الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم۔ آج عنوان کافی آج کی کفریہ باتیں کیا، کفریہ جملے کیا، وہ کون سی باتیں ہیں، وہ کون سے جملے ہیں جن کے بولنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے، اس پر آج بات ہوگی۔ ایک ہے ایمان کا کنارہ، ایک ہے کفر کا کنارہ، ایک ہے ایمان کا کنارہ اور ایک ہے کفر کا کنارہ۔ اب وہ کفریہ باتیں کیا ہیں جن کے بولنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے؟ اللہ کے بارے میں، نبیوں کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں، ایسا ان کے بارے میں اگر آدمی ان کے شان میں بے ادبی کی باتیں بولتا ہے، اللہ کے شان میں بے ادبی کی باتیں بولتا ہے، اسلام کے بارے میں بے ادبی کی باتیں بولتا ہے، قرآن کے بارے میں بے ادبی کی باتیں بولتا ہے، نبیوں کے بارے میں بے ادبی کی باتیں بولتا ہے، تو اس طرح بولنے سے یا صحابہ کے بارے میں بے ادبی کی باتیں بولتا ہے، گستاخی کی باتیں بولتا ہے، پیغمبروں کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں گستاخی کی باتیں بولتا ہے، آخرت کے بارے میں آخرت کو مانتا نہیں، تو اس طرح کی باتیں کرتا ہے، یا جہنم سے ڈرتا نہیں، عذاب سے ڈرتا نہیں، تو اس طرح کی باتیں بولنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ ان کے بارے میں، ان کے شان کے خلاف باتیں بول دیا تو آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ تو چند کفریہ جملے، وہ کون سے جملے ہیں جن کے بولنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے؟ بہت سارے ہیں، بہت سارے جملے ہیں جن کے بولنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ تو اس میں سے چند کفریہ جملے کون سے اس میں سے ذرا بول دیتے ہیں، آپ اسے نوٹ کر لے کر اس طرح کے اور بہت سارے جملے ہو سکتے ہیں، ان سے ہمیں بچ کر رہنا چاہیے۔ چند کفریہ باتیں۔ عقیدہ، ایمان اس وقت درست رہتا ہے جبکہ اللہ اور اس کے رسول کی سب باتوں کو سچا سمجھے۔ ایمان کب رہتا؟ ایمان درست کب رہتا؟ صحیح کب رہتا ایمان ہمارا؟ آدمی جب اللہ کی اور رسول اللہ کی، نبیوں کی، ان کی باتوں کو آدمی سچا سمجھنا، اللہ کا بولتی ہے بس وہ سچ، رسول اللہ کیا بولتی ہے بس وہ سچ، وہاں ہماری عقل ہمیں ہاتھ بڑھانا نہیں، ہماری عقل یہ بولتی ہے اللہ ایسا بولا کیا، رسول اللہ ایسا بولے کیا، پھر ہماری عقل کے خلاف ہے تو اللہ رسول کی بات، ہمارے عقل کی بات، ہمارے عقل کو سمجھ میں آندے نہیں آندے، اللہ رسول کی بات کے سامنے ہماری عقل کو بھی سر جھکانا پڑے گا۔ تو اللہ رسول کی بات کے سامنے ہم کو اپنی عقل ہاں کام نہیں کرنا، اپنی عقل کو چھوڑ دینا، اللہ رسول کی بات کو سچا سمجھنا، اور ان سب کو مان لے، اللہ رسول کی جتنی باتیں ہیں تمام باتوں کو مان لے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات میں شک کرنا یا اس کو جھٹلانا، اس میں عیب نکالنا، اس میں مذاق اڑانا، ان سب باتوں سے ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ تو ایک بات میں کتنی باتیں کہاں کی رکھیں، ایک اصول کے سر کا اللہ رسول کی باتوں کو صحیح سمجھنا، درست سمجھنا، ایمان صحیح ہونے کے واسطے، اور اللہ رسول کی باتوں کو مان لینا آدمی، سچ بھی سمجھنا اور ان کو ماننا بھی آدمی، سچ سمجھ رہا آدمی لیکن مان رہا نہیں، تب بھی ایمان والا نہیں ہو سکتا آدمی۔ اللہ رسول کی باتوں کا سچ بھی سمجھنا اور ان باتوں کو ماننا بھی، ورنہ بہت سارے غیر مسلم لوگ دیکھو سچ سمجھنے اور ماننے دونوں میں فرق کیا وہ سمجھانے کے لیے ایک مثال۔ اب بہت سارے غیر مسلم لوگ اللہ ہے کا بول کر تو مانتے ہیں، اللہ ہے کا کو مان کو چنا ہمارے پاس ذبح کرنے کے واسطے آنے کا، حلال نہیں ہوتا ہمارے یہ کو غلط کیا کرتے ہیں، ذبح کرنے کے واسطے، جانور کاٹنے کے واسطے کیا کرتے ہیں، ہمارے پاس آپ کو کٹا لے جاتے ہیں، اللہ تعالی کرتے ہیں، اللہ ہے معلوم ان کو بھی، سچ میں اللہ ہے ان کو معلوم ہے، لیکن انہوں اللہ کو مانتے ہیں، اگر مانتے بولے تو یہ نہیں مانتے، وہ ہے سچ صاحب، لیکن انہوں نے مانتے اللہ کو، سچ ہے اللہ، سچ میں اللہ نہیں ہے بول کر بولتے ہیں، اس کے بعد کیا کرتے مانو، اس کی عبادت کرو، اس کی بات مانو بولے تو نہیں مانتے، انہیں مانتے اللہ لیکن اسے ایک نہیں مانتے ہیں۔ بہت سارے ہیں بھائی، کنکر بھی ہے، شنکر بھی ہے، سب اللہ کے ہیں، کہتے کنکر ہوں کے شنکر ہوں کے، تو ویسا جھاڑا بھی اللہ چن کے، کتے بھی اللہ چو، اور جانوراں، پرندے، چیلا، بھیسا کیا کیا کہ ان کے اللہ سب کو اللہ مانتے ہیں، پتھروں کو اللہ بول لیے، جانوروں کو اللہ، چوہے کو اللہ بول لیے، بھینس کو اللہ بول لیے، تو کسی کو اللہ نہیں سو کو نہ بولے، اللہ نہیں سو کو نہ بولے، تو یہ حال ہے۔ تو انہوں اللہ کو جان رہی ہوں، سچ سمجھ رہی، سچ میں اللہ ہے بھائی بول کر بولتے ہوں، لیکن اللہ کو نہ مانتے ہیں، اللہ کی بات نہیں کرتے، ایک اللہ کو نہیں مانتے، تو ان کو بھی معلوم ہے سچ میں اللہ ہے لیکن ایک اللہ کو نہیں مانتے، یہ سمجھانے کے لیے۔ تو ایک تو اللہ رسول کی بات کو
सच्चा समझना और उन सब बातों को मान लेना। और आगे क्या, अल्लाह और रसूल की किसी बात में शक करना। अल्लाह रसूल कोई बात बोल दी है तो उसमें शक करना आदमी, ऐसा कैसा हो सकता? नहीं होता कि नहीं होना चाहिए। अल्लाह कहीं वैसा काम बना दिया सब, मर्द बना के चाशादा कर सकता, भाई वो नहीं कर सकती वैसा शक। अल्लाह कुरान मजीद में इस्लाम में इजाज़त है सो करो तो अल्लाह फ़र्ज नहीं कराया। एक मर्द को 4 शादियाँ करने के लिए अल्लाह ताला से इजाज़त है, सो इजाज़त कर सकता, चांस करना फ़र्ज है। जैसा नमाज फ़र्ज है, 4 शादियाँ फ़र्ज है मर्द के लिए, ऐसा नहीं है, इजाज़त है, करना चाहे तो ताकत है, पैसा है, घर दे सकता है, कपड़ा दे सकता है, उनके खर्च उठा सकता है, 4 बीवी तो कर सकता है, नहीं तो नहीं। अब अगर ऐसा कोई आदमी कहता है तो ऐसा कैसा भाई अल्लाह कैसा बोलता वैसा कैसा बोले अल्लाह वैसा कैसा बोलता होता? मर्द माने बोला कानून भाई बोला कानून क्या औरत इंसान नहीं क्या? ऐसा अगर कोई आदमी शक करता है अल्लाह के हुक्म के बारे में आदमी काफिर रहता है। इससे समझ में आ गया नहीं? अल्लाह उसकी बात में शक करने से काफिर रहता, या उसको झुटलाए, मैं नहीं मानता, अल्लाह बोले तो बोले, मैं नहीं मानता उसे। अल्लाह से बोला रहेगा भाई, अल्लाह बोला रहेगा सूद हराम है बोलकर, नहीं लेकिन मैं नहीं मानता। अल्लाह बोला है दुनिया में तुम अगर जुल्म करोगे ना करोगे तो अज़ाब मिलेगा मरने के बाद, मैं नहीं मानता। ये दुनिया बस भाई यहाँ चाहिए और अभी कहाँ हमारे को कहाँ है दुनिया, ये दुनिया सब कुछ है भाई, यहाँ से कल क्या करना है, आखिरत की बात कोई नहीं भाई, आखिरत कोई सी आफत नहीं भाई, हो गया चल गई सभी आफत, ये दुनिया ऐसा आफत का जो चुटला रहा। तो अल्लाह रसूल बोल दिया आखिरत है बोलकर, क़यामत है, आखिरत है, अल्लाह हिसाब किताब लेंगे, अल्लाह रसूल फरमा रही। अब आदमी इनकार कर दे रहा, वो से आफत नहीं भाई, ये दुनिया भाई ये सब कुछ है, हाँ क्या करना कर लो भाई, मन बस यहाँ क्या करना है कर लो, ऐश कर लो, मजे कर लो, मरने के बाद क्या नहीं है बस खत्म, ऐसा समझ रहा। यानी लोग भी आदमी क्या समझ रहा, हिंदुओं का अकीदा ले रहा, हिंदुओं क्या समझती 7 जन्म का अकीदा रखती हूँ। तो अगर आदमी वैसा अकीदा रखा तब भी आदमी मुसलमान नहीं हो सकता। बिल्कुल सरे से आखिरत का इनकार कर दे रहा तब भी आदमी काफिर हो जाता। आखिरत की तरफ क्या नहीं भाई, बस यहाँ क्या करना है कर लो भाई, ऐसा उनका आखिरत का इनकार कर दिया तब भी आदमी काफिर हो जाता। या फिर आदमी ऐसा मान रहा 7 जन्म है बोलकर, उससे आदमी मुसलमान नहीं हो सकता। तो बीच की बात क्या, आखिरत है, उसमें शक नहीं करना, झुटलाना नहीं, उसे इनकार नहीं करना उसका। इसमें आयत निकालना, दीन की अल्लाह रसूल की बातों में, कुरान की बातों में, शरीयत की बातों में आयत निकालना एक दाढ़ी खूबसूरती में एक आड़ नहीं है। आदमी ये तो अच्छा हैंडसम लगता है, स्मार्ट होता आदमी, ये है तो चूंकि एक आड़ क्या, ये हमारी खूबसूरती के अंदर, हमारी हुस्न के अंदर, हमारे जमाल के अंदर ये एक आड़ के सर का है, कहीं कोई है चूंकि आड़ा भी है, कचरा चुपके कहीं कोई सब चीज़ें नहीं लगा है, सब चीज़ें देखना चाहिए। तो इसे समझाने के लिए आपको एक वाक़या मिसाल पर बताता हूँ। एक हज़रत के पास नहीं, हमारे पुराने हज़रतों के पास, आज से 150-200 साल पहले का वाक़या। एक हज़रत के पास एक आदमी आया, आकर कहने लगा, आलिम साहब थे, हज़रत थे, हिंदुस्तान की आज़ादी में उनका बहुत सारा किरदार है। हज़रत कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह, क्या नाम बोलो? हज़रत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह, क्या नाम? हज़रत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह, दारुल उलूम देवबंद है नहीं, मदरसा देवबंद का मदरसा, वो मदरसे के पानी सरपंच थे पहले, बड़े थे उसमें, नीचे थे प्रिंसिपल। तो जब अंग्रेज़ का ज़माना था, तो अंग्रेज़ के ज़माने में अंग्रेज़ अपना मज़हब और अपना कल्चर सब जगह हम बिछा रहा था, अपने कल्चर की, अपने मज़हब की जाल हर जगह बिछाता जा रहा था अंग्रेज़। तो हमारे मुसलमान भी अंग्रेज़ की चाल को, अंग्रेज़ के कल्चर को उससे मुतासिर थे, अंग्रेज़ के कल्चर से लोग हाँ मुतासिर थे, उनकी बातों में आ गए थे, उनकी बातों सुनते थे, उनकी बातों पर इंटरेस्ट देते थे, अंग्रेज़ की बातों पर। अब एक आदमी आकर ऐसा अब अंग्रेज़ की बातों में अंग्रेज़ लोग कहाँ ला देते हैं, नहीं रखते, कल्चर उनका अलग है, उनका फैशन अलग है। तो एक आदमी हज़रत के पास, हज़रत कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह के पास आकर अगर मुसलमान आदमी बोलता है, हज़रत दाढ़ी रखने की काम करते हैं, एक उसूल बता दिया, एक अकल से बात कर रहा हूँ, अब मैं पढ़ा नहीं, क्या भी नहीं बोला, दूसरे आपको कैसा लगता, तो मैं कुरान पूरी पढ़ लिए, समझ लिए, नबी की हदीसों को समझ लिए, उसके अंदर से मसाइल को निकालना मालिमों को हज़रतों को आता है, तो उनको कितने अकल नहीं होगी, ऐसा बोलकर वो अकल से बात करने लगा। तो अल्लाह ताला भी नहीं, कोई से ज़माने में कैसे लोग होती थी, अल्लाह ताला वैसे ज़माने के अल्लाह ताला उलमा को पैदा करता,
अगर अकल लोग अकल से बात करने बोले तो अल्लाह ताला उलमा को वैसे पैदा करता हजरत उन्होंने भी अकल से जवाब देते। अब कोई था सुना कर क्या पूछा, देखो हजरत दाढ़ी रखने की जरूरत नहीं होती, कोई बात नहीं, ये तो इंसान के खूबसूरती के अंदर हुस्न के अंदर एक आर्ट के सर का है, ये ऐप के सर का है, नहीं होना चाहिए। इसके में पहले मैं एकदम हैंडसम स्मार्ट देखो कैसा हूँ, नहीं ज़्यादा हजरत से कहने लगा, हजरत नाम के रहो ऐसे पास में आते हो तो हजरत आकर और क्या कहने लगा हूँ कि देखो हजरत मौलाना, जब इंसान पैदा होता है तो जब इंसान की पैदाइश हुई तो उसके बचपन में उसे दाढ़ी वगैरह नहीं थे, दाढ़ी वगैरह नहीं थी, दूसरी चीज़ें नहीं थी निशान। अब जो चीज़ बचपन से ना हो उसे हमें कहीं एडिशन करना, बचपन से नहीं तो दाढ़ी बड़े होने पर आते सो। अब वो जो चीज़ बचपन से नहीं है वो असल नहीं है, वो एक्स्ट्रा फिटिंग है, इसलिए हम उसे क्या कर देंगे, हटा देंगे, निकाल देंगे। ये बोल रहा है, क्या बोलते हैं बोलो, बचपन से बच्चा जब पैदा होता है इंसान तो उसको दाढ़ी नहीं आती है, इंसान बड़ा होने के बाद दाढ़ी आती है। अब मतलब क्या हुआ कि दाढ़ी फितरत में नहीं है, हाथा फितरत में है, तबीयत में है, इसलिए अल्लाह ताला हाथा पैदा कर दिया, बच्चे बचपन में हाथा रहती, पौवा रहती, सर रहता, बाला रहती, तो ये फितरत की चीज़ें हैं। दाढ़ी नहीं थी बचपन में, इसलिए हम क्या कर देंगे, ये दाढ़ी फितरत में नहीं है, इसलिए दाढ़ी को निकालना चाहिए। ये आकर हम अकल से बात करा, अब ऐसा बंदों को देखना समझता, हमारा से कितना कोटा से बात करता अकल से, सही बोला तो बचपन में दाढ़ी रहती है, निकालना चाहिए, लेकिन इन ऐसा अकल से बात करा नहीं। हजरत भी अकल वाले थे, उन्हें भी अकल से, और अभी पुरानी में जैसे लोग होंगे, जैसे आवाम होगी, जैसे पब्लिक होगी, अल्लाह ताला उलमा को भी अल्लाह वैसे अकल देगा। तो हजरत क्या बोले, हजरत ने जवाब दिया उसे, जब तो पैदा हुआ था तो क्या बोल रहा, बचपन में दाढ़ी नहीं थी हजरत, बड़े बड़े बात आ गई है, एक्स्ट्रा फिटिंग है, ये फितरत के खिलाफ है, इसमें निकाल देना चाहिए। अब हजरत बोले थे जब तो पैदा हुआ था तो ये दांत नहीं थे, अकल ये तो थोड़ी निकाल दो जवाब क्या दिए थे, बचपन में तुझे दांत नहीं थे, तुझे बड़े होने के बाद 2-4 साल के बाद तुझे दांत आना शुरू हो गए, अब क्या करता तू, जो चीज़ें तू तेरे बोलने के कानून के हिसाब से तू क्या बोल रहा, जो चीज़ें बचपन में फितरत में है, हाथा पैदा वगैरह ये फितरत में है, ये तबीयत में है, उनको रखना चाहिए। अब जो चीज़ें बचपन में नहीं है, जैसे दाढ़ी है, निकाल देना चाहिए, तू बोल रहा नहीं, तेरे कानून के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, बचपन में दांत नहीं थे, अब क्या करता तू, उसे पता पकड़ कर निकाला, ये बोलना था उसकी अक्ल बनी। ऐसा सारे वाक़े भी है, हज़रत अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह सेम वाक़े ऐसा, एक आदमी आकर कोई सब पूछता, हज़रत अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह सेम के साथ जवाब ऐसा बात करते, हज़रत जवाब देने के बाद उनके पास उनके तालिब के शागिर्द बोलते, हज़रत आपने दंदा शिकन जवाब दिया, हज़रत के शागिर्द बोलता हज़रत को, हज़रत आपने दंदा शिकन जवाब दिया, मुँह तोड़ जवाब बोलते नहीं में, मुँह तोड़ जवाब, आप जवाब ऐसा दीजिए कि उसका मुँह टूट गया, तुम खामोश लाजवाब हो गया, वैसा जवाब दिया, मतलब ये सेम वाक़या। उसमें पहले वाक़ये में हज़रत नानवी रहमतुल्लाह नाम हज़रत नानवी कासिम नानवी का किस्सा और इसमें हज़रत हामिद का किस्सा सेम किस्सा, तो सेम जवाब होगा। तो ये हमारे बुजुर्गान हज़रत भाई से हटे, ये उनके सामने हमारी अकल हमें गलाना नहीं डाला बना, सलीके से तमीज़ से आकर क्या मसला है वो पूछना, ऐसा करते तो ऐसा कर सकते तो ऐसा भी, ये दाल नहीं गलाना हमारी अकल, इस्लाम में हमारी दाल निकलती, गलाने की कोशिश नहीं करना, और क्या है नहीं कितनी बात समझ में आती है, एक बात के अंदर कितनी बात है। तो ये सब चीज़ें अभी इस तरह के कुरान हदीस में, दीन में, शरीयत में, ऐसा किसी भी इस्लाम के हुक्म में आदमी डाउट करता है तो आदमी उससे काफिर हो जाता है। अब ऐसा मिसाल के तौर पर आदमी क्या समझ रहा, रोज़ा रखो बोलकर बोले तो अब उन यूट्यूब में वगैरह हिंदुओं के, इस्लाम दुश्मनों के बयान सुनता रहता है, या उनके बयान सुनता रहता है, पहले हक लोगों के बयान नहीं सुनता। अब उन्हें बयान का इनकार करा, मतलब हमारे लोग मुसलमान उनके पास हमारा सही मैसेज पहुँचे, सच्ची बात पहुँचे, अच्छी बात पहुँचे, कुरान हदीस की, अल्लाह रसूल की बात, सही बात पहुँचे उन तक, लोग हमारे को सुने, हमारे हज़रतों को सुने, हमारे हज़रतों में बहुत सारे जो बयाना करने वाले हैं उन लोग भी यूट्यूब के अंदर बयाना कर रहे हैं, कौम तक बात पहुँचा रहे हैं, लाखों की हज़ारों की तादाद में उनके लोग फॉलोअर्स हैं, देखते ही सुनते हैं लोग उनको। और मेरे बयान तो होता नहीं, गैर मुस्लिम लोग नहीं सुनते, लेकिन हमारे हज़रतों के बयान को गैर मुस्लिम लोग जुमे के मौके पर आकर बयान सुनते, लायरा पोलिसान के बयान सुनते, बड़ी बड़ी हीरोइयाँ बयान सुनते हैं हमारे हज़रत। तो मेरे हाल तो ये जो बात बोला नहीं हमारे हज़रतों की बयान हमारे दूसरे लोग सुनते रहते होता, ये मैं हमारे हज़रत से सुना था, हमारे हज़रत साहब खुद बोले थे, ऐसा बोले थे हमारे बयान को बहुत सारी हीरोइयाँ सुनते रहती थी, बहुत सारे लायरा वगैरह भी सुनते रहते। और हज़रत परसों 1-2 महीना पहले उम्रे को गए थे, उम्रे को जाने से पहले जब जुमे का बयान हुआ था तो जुमे में एक हिंदू आगे बैठा था, उसका नाम लेकर सब समझाते थे कोई बात, उसके
पैगाम देते थे, समझाते थे। तो ऐसा मस्जिद में आना गैर मुस्लिमों को बुलाकर, हमारे अगर कोई तो पक्के दोस्त है तो उन्होंने इस्लाम से करीब है, इस्लाम से मोहब्बत है, हमारे अखलाक से हमें उनको मुतासिर कर दिए तो वो लोग अभी क्या होंगे, ईमान को, मस्जिद को, इस्लाम का कबूल करने के लिए बहुत करीब आ जाएंगे। जो गैर कौम में, गैर मुस्लिमों में दावत का काम करने का, इस्लाम का प्रचार करने का आसान रास्ता क्या बोलूँ, हमें उनके साथ कोई क्या वास्ता पड़ रहा, क्या हमारे पड़ोसी में हमारे गली में होना, तो हमें उनके साथ अच्छा रवैया करना, अखलाक से उनसे पेश आना, हमारे अखलाक के, हमारा इस्लाम के हमको दिखाना हमें, इससे लोग हम मुतासिर होंगे। तकलीफ नहीं देना, घरों में हमें आजू बाजू गली में तकलीफ नहीं दे रहे, तकलीफ से लोग हम करीब नहीं आते, उनको ऐश आराम सुकून से रखे तो लोग हम उन्होंने भी कभी बीमार पड़ गए, हमारे गली में कोई गरीब की बात नहीं, बीमार पड़ गया या कोई तकलीफ है, कोई परेशानी है, जनाजा है उसका, तो उसकी तकलीफ में जाकर शरीक होना, बीमार हो गया उसके में इजाज़त को जाना, देखभाल करने जाना, उसे पूछ कर जाना, कैसे जाना, इन सब हमारे कामों से हमारे लोग क्या हो जाएंगे, हमारे पड़ोसियाँ इस्लाम के करीब आ जाएंगे। तो वैसा गैर मुस्लिम लोगों को मस्जिद में ला सकते हैं और यहाँ क्या ला सकते हैं, गैर मुस्लिम लोगों को जमजम का पानी दे सकते हैं, गैर मुस्लिमों को जमजम का मक्के का खजूर दे सकते हैं, समझ में आगे बात, दे सकते हैं, खिला सकते हैं, उनको सब कुछ कर सकते हैं सब। गैर मुस्लिम अगर कोई आदमी उसे कुरान पढ़ना चाह रहा, उसे तेलुगु में तर्जुमा वगैरह पढ़ना चाह रहा, उसे इंसान से मोहब्बत होगी, हमारे अखलाक से मुतासिर हो गया, हमें बीमार पड़ गया था, देखते थे उसे, उसका खर्चा उठाते थे, या फिर उसका बच्चे का स्कूल फीस वगैरह भरते थे, या कोई भी काम उसका साथ देते थे मुश्किल में उसे। अब तो वो आदमी इस्लाम से हमारे से बहुत मुतासिर हो गया, अब वो आदमी क्या बोल रहा, तो तुम्हारा धर्म कौन सा, तुम्हारा मज़हब कौन सा, तुम्हारी किताब कौन सी, पूछ लिया सब, जरा ला कर पढ़ लूँगा, उसे मुताला करूँगा, स्टडी करूँगा, तो हमें क्या करेंगे, उसे तेलुगु किताब दे सकते देने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन उसे इतना बोल कर दो कि देख भाई अगर तू पढ़ना चाह रहा हमारे कुरान बोल, तो इसे वज़ू होकर पाकीज़ा होकर पढ़ना पड़ता है, इसे ऐसा करो, उसे पानी नहाकर पढ़ना, समझाना उसको, दे तो सकते हैं उसे। मस्जिदों के अंदर गैर मुस्लिमों को बुला भी सकते हैं, इनको बिठा भी सकते हैं। अब तुम्हें पूछेंगे कि कैसा ऐसा बता सकते हैं, कैसा बोलकर बोलता, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक वाक़या पेश आया था, इससे पहले दस कुरान में बताया था वाक़या, एक सहाबी अभी वो इस्लाम में कबूल किए थे, कैद होकर आए थे, किसी जंग में कैद होकर पकड़ कर लाए गए थे, लाकर सब खान को बंधा लेते हो खैदी के साथ, तो मस्जिद में लाकर बंधा लेते हैं खैदी के साथ। तो बाद में उनका नाम था सुमामा बिन अस्साल, क्या नाम उनका सहाबी का, सुमामा बिन अस्साल रज़ी अल्लाह अन्हु। तो सहाबी को बांध दिए थे, खैदी को पकड़ कर लाए थे जंग से। अब क्या होता था, मस्जिद के अंदर सब ऐसा तालीम वगैरह, कुरान सिखाना, पढ़ना पढ़ाना सब वगैरह, वो खाना तो देते थे, खाना वगैरह सब इंतजाम करते थे। अब तो रोज़ उनको खाना वगैरह सब इंतजाम करते थे, लेकिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको रोज़ पूछते थे, जाओ क्या हाल है सुमामा, पूछो, पूछते थे, तुम बताओ क्या हाल है, खैरियत से हो, क्या हाल है, अच्छे हो, क्या हाल है, क्या तबीयत कैसी है, कोई तकलीफ है क्या नहीं, खाना पीना हमारे लोग सब अच्छा नहीं दे रही, सब उनका हाल पूछते थे, दोस्त को कैसे पूछते थे उनसे, तो मुतासिर हो गया। अब बाद में चंद दिन के बाद 2-3 दिन में क्या हो गया, सहाबी बिन अस्साल रज़ी अल्लाह अन्हु इस्लाम कबूल कर, तुम इस्लाम कबूल कर, बाद में सहाबी बन गए। तो ऐसा मस्जिदों के अंदर ला सकते बोलकर हमारे को वाक़या दलील है, कौन तो बोले तो कहीं पे लाना, ऐसा अगर तुम्हारे दोस्त अगर कौन तो भी इस्लाम से मोहब्बत, उनसे ये हो गया ताल्लुक़, और इस्लाम में उनका दिल चाह रहा है इस्लाम कबूल करने के वास्ते, मस्जिद में दिल चाह रहा है, तो उनको लेकर कोई बात नहीं, ऐसा मस्जिद के अंदर लाकर ऐसा हमारा बयान हो रहा, दर्स कुरान हो रहा है, ऐसा कोई मैं तो कोई सवाल है, तो आपके पीछे गए होते दोस्त को कभी नाश्ते की दावत देकर, कभी चाय की दावत देकर, मंदिर लेने से बुला लेकर आओ। मस्जिद अल्लाह ही नहीं, अल्लाह सबका, रसूलुल्लाह सबके, कुरान भी सबका। अब उसके अल्लाह को मांगने वास्ते आ गया, पूरे बहुत सारे गैर मुस्लिम लोग हैं नहीं, बहुत सारे इलाकों में ऐसा होता, यहाँ भी आकर रहती कभी कभार, बहुत कम, अगर वो इलाज करा बीमार पड़ जाओ, तो बहुत सारी जगहों पर इलाज करा दिए, उनका शिफा नहीं हो रहा, सेहत नहीं हो रही, तो जान नहीं हो रहा, क्या करते कभी मस्जिदों के पास आकर भी मस्जिद से मैं नमाज़ पढ़ने निकलती नहीं, मैं अल्लाह के अक्तर को दुआ कर पाते रहती है, पाकिज़ा होकर रहती है, बल्कि वो लोग आपको ज़रा पढ़ को फूक हमारे बच्चे पर, ज़रा पानी डाल कर फूक और बच्चे को सेहत मिलती है, रोना मोहब्बत से आते हैं, तो उनको ही मालूम है शिफा अल्लाह से मिलती, यहाँ आगे तो शिफा मिल जाती है, उनको मालूम, तो इसलिए उनको लेकर आना चाहिए। उनको कभी कभार क्या तो अच्छा बोले जाना अच्छा नहीं, क्या तो बोलकर बोल दिया भाई नहीं बोला भाई पढ़ को फूक तो में अल्लाह का सूरा पढ़ को फूक देते हैं, शिफा हो जाती है। मेरे यहाँ तो ये सब चीज़ें गैर मुस्लिम लोगों को दे सकते हैं, ला सकते हैं, मस्जिद के अंदर बिठा सकते हैं, बयान करके उनको सुना सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है, कुरान भी को दे सकते हैं, लेकिन देने के लिए ये सब चीज़ें बोलकर बात होकर पढ़ना, ये सब चीज़ें करके देना चाहिए। तो ये सब बातें समझ में आ गया नहीं। और आगे क्या, इसमें मजाक उड़ाना, अल्लाह रसूल की दिन की बातों से मजाक उड़ाना, मजाक नहीं उड़ाना, अब इंसान के तौर पर
दाढ़ी का रखो, दाढ़ी का रखो, तो आता है तो आता है पंडा कुछ आता है रे वो क्या आता है रे ऐसा बोलना, मजाक उड़ाना उसका दाढ़ी के जरिए से। उसकी लिबास पे देखो अभी बूढ़ा हो गया तो जवाब लगा तो अभी बूढ़ा हो गया तो ऐसा लिबास को देखकर, इस्लामी लिबास को देखकर उसे बूढ़ा हो गया तो ऐसा हो गया तो बूढ़ा हो गया, दाढ़ी बूढ़ा हो गया तो जब ऐसा मजाक उड़ाना उसका। ये दाढ़ी ये फितरत है, नबियों की सुन्नत है, हमारे नबी की सुन्नत है। कुरान में दाढ़ी रखो करो, हदीसों में दाढ़ी रखो करो, इशारा मिलता है कुरान मजीद में तो रखना चाहिए। लेकिन जब कोई आदमी इस्लाम के किसी भी हुक्म से, किसी भी हुक्म का आदमी मजाक उड़ाता है तो उससे आदमी काफिर हो जाता है। एक आदमी साल के तौर पर कोई आदमी दाढ़ी नहीं रख रहा, गुनाह होता, रखना दाढ़ी रखना वाजिब है, वाजिब कंपल से करना पड़ता। अगर कोई आदमी दाढ़ी नहीं रख रहा लेकिन जो आदमी दाढ़ी रखा है उसका ये आदमी मजाक उड़ाना पड़ता तो उससे आदमी काफिर हो जाता है। आज हमारी टॉपिक क्या चल रही है, क्या चल रही है टॉपिक क्या चल रही है, बोलो वो बातें जिनको बोलने से आदमी काफिर हो जाता है। तो इसलिए अल्लाह रसूल की बातों को सच्चा मानना और उनको मान लेना और उसके बाद क्या करना, उनकी अल्लाह रसूल की बातों में, दीन की शरीयत की बातों में डाउट नहीं करना और उनको झुटलाना नहीं। अल्लाह रसूल कोई बात बोल दी तो झुटलाना नहीं, आखिरत है मिसाल के तौर पर झुटलाना नहीं, उसे है मानना उसे, और दीन की किसी बात में ऐब नहीं निकालना, ऐसा नहीं तो ऐसा नहीं बोल। और क्या आगे मजाक नहीं उड़ाना, दीन की किसी बात का मजाक नहीं उड़ाना, इन सब बातों से ईमान खत्म हो जाता है। एक बात पे जिक्र लग गया हो गया। अच्छा, दूसरा अकीदा, कुरान और हदीस के खुले वाज़िह मतलब को ना मानना, उसमें से अपने मतलब के मानी घड़ना बददीनी की अलामत है। कुरान हदीस के खुले वाज़िह मतलब को ना मानना, कुरान मजीद में किसी कोई भी हुक्म है उसे आदमी नहीं मान रहा, सराहत से खुला मालूम हो जा रहा, ये करो ये नको करो बोलकर मालूम हो जा रहा, ये रखो ये नको रखो बोलकर मालूम हो जा रहा, फिर भी आदमी उसे नहीं मान रहा तो इससे आदमी काफिर हो जाता है। मिसाल के तौर पर बहुत सारी मिसालें, मिसाल के तौर पर शिर्क नहीं करना बोलता है, अल्लाह अपनी बात करो बोलकर बोल रहा, फिर भी हमें अल्लाह को बोलने के बावजूद भी हमें फिर भी हमें अपने एतबार से शिर्क करती है। तो आदमी शिर्क करने को अच्छा काम समझ रहा। अगर कोई आदमी आगे बात आएगी दूसरी नेक्स्ट बात नीचे से, अगर कोई आदमी गुनाह को हलाल समझ रहा, ज़िना को आदमी हलाल समझ रहा, गाने सुनने को आदमी गुनाह है लेकिन उसे हलाल समझ रहा आदमी, कव्वालियाँ सुनना ये हराम है लेकिन उसे आदमी हलाल समझ रहा, गुनाह को हलाल समझ लेना, इससे आदमी काफिर है। अगर मिसाल के तौर पर कुरान मजीद में है सूद खाना को बोल कर आदमी खाने वाला आदमी क्या बोल रहा है तो क्या होता है, क्या होता है तो हलाल समझ रहा नहीं, उसको सिर्फ है तो क्या होता बोल रहा, अगर हराम समझता तो नहीं खाना बोलता। अगर कोई आदमी हराम को हराम समझ रहा लेकिन फिर भी खा रहा हूँ बोले तो उससे काफिर नहीं होता। हराम समझ रहा फिर भी खा तो काफिर नहीं होता। हलाल समझकर खा रहा बोले तो या डाउट कर रहा, कहीं को नहीं खाना, इतराज कर रहा, कहीं को नहीं खाना, वड्डी पर वड्डी ब्याज पर ब्याज सूद देते जाएंगे तो उससे माल बढ़ता जाता है, कहीं नहीं लेना। अकल लगा रहा हूँ आदमी, ज़कात क्यों देना, ज़कात देने से आदमी का माल खत्म हो जाता, कम हो जाता, ज़कात देने से माल कहीं को देना, ऐसा सदका देने से माल कम हो जाता, कहीं को देना सदका। कुरान मजीद में है, कुरान शैतान क्या करता है, शैतान यूज करने का, शैतान क्या करता है तो डराता रहता फ़क्र फाक़े से, तू माल खर्च करेगा तो तेरे माल के अंदर कमी आ जाएगी, तू ज़कात देगा, तेरे माल के अंदर कमी आ जाएगी, तो सदका देगा, तेरे माल के अंदर कमी आ जाएगी, हमको देगी, सब होकर शैतान डराता रहता। तो अल्लाह ताला क्या बोल रहे हैं, तू ज़कात देने का मेरा हुक्म है, तू दे दे, अल्लाह उससे क्या करेंगे, बरकत अल्लाह ताला उससे देंगे, तब भी मालूम नहीं होता। अब मिसाल के तौर पर समझाने के लिए एक मिसाल, ज़कात देने से सदका देने से आदमी का माल बढ़ता नहीं है, घटता नहीं है, बढ़ता रहता है। वो बढ़ता है सब को दिखता नहीं हो। अब मिसाल के तौर पर समझने के लिए ज़कात देने से सदका देने से आदमी का माल बढ़ता रहता है, घटता नहीं है, तो इसके लिए एक मिसाल, अब तो नल्ला वगैरह आ गए, पहले ज़माने में घोड़ियाँ वगैरह थे तो घोड़ियों के अंदर से बिंदे बिंदे पानी निकालते थे तो पानी खत्म होता था क्या, फिर आता रहता पानी और पानी आता रहता और पानी आता रहता, जितना पानी निकालते जाओगे उतना पानी आता जाएगा, पानी खत्म नहीं होता। तो वैसा अब पानी आता समय दिखता रहता क्या, वो उसका काम वो आने का आता रहता। अब जमजम का देखो कुआं, जमजम का बॉडी कुआं है नहीं, वो कब से है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम आपको कितने साल हुआ, हज़ारों के साल हो गए उन्हें आकर जाकर, नहीं उनके बच्चे वाक़ई मालूम नहीं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का कुआं जमजम कैसा नाम आया उसको मालूम नहीं, वाक़ई बोलना है बात मालूम, सबको मालूम
किसी को एक बार मालूम नहीं होते बोला तो किसी को एक दिन को अगर मालूम नहीं होते तो बोलना। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम है नहीं, उनको 2 बीवियाँ थे। एक बीवी हज़रत हाजरा, उनके एक बेटे इस्माइल, उनकी बीवी सारा, उनके बेटे इसहाक। तो हज़रत हाजरा अल्लाह ताला हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बहुत सारी बातों में इनको अल्लाह आजमाया। एक बात अगर हदीस के अंदर है, जो आदमी जितना दीन से रसूलुल्लाह से मोहब्बत करता रहता नहीं, अल्लाह से मोहब्बत होती है, दीन से, कुरान से, दीन वालों से, हज़रत से मोहब्बत रहती नहीं, दीन पर के तमल करता रहता हूँ, सुन्नतों पर, शरीयत पर के तमल करता रहता, उसके ऊपर हालात वैसे आएंगे। ऐसा ऊपर के तरफ से पानी जैसा नीचे की तरफ की तरफ स्पीड आता, वैसे उसके ऊपर हालात, परेशानियाँ, उसके घरों से मुर्दे उठना, ऐसे उसके ऊपर परेशानी आते रहेंगी। कौन कितना दिन पर अमल करता था उसके ऊपर परेशानी आते रहेंगी। हमारे ऊपर परेशानी नहीं आती तो बिल्कुल तो हमें दीन पर वक्त कमजोर है, दीन के वक्त अमल नहीं कर रहे। अब फ़लस्तीन में ताकि आलिम रखो हाथ उनके ऊपर लोग उन्होंने वक्त मजबूत ही मन पर, इसलिए उनके ऊपर वैसे बमबारी हो रही है, फिर भी उन्होंने क्या करे, डट कर मुकाबला करें दुश्मनों का। तो हमारे ईमान वैसा नहीं है, इसलिए हमारे ऊपर हालात वैसा नहीं है। तो बहरहाल जितना जिनका ईमान जितना मजबूत होगा उनके ऊपर हालात भी वैसे आएंगे। तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला बहुत सारी बातों में अल्लाह उनको आजमाया। उनकी आजमाइशों में एक आजमाइश क्या थी कि अल्लाह ताला उनको बहुत लेट दिया बच्चे नहीं थे, उनको बहुत बड़ी उम्र हो गई थी, बच्चे नहीं थे। बाद में अल्लाह से दुआ किए तो अल्लाह ने बच्चा दिया। बच्चा होने के बाद अल्लाह ताला क्या कर दिए, अब देखो इब्राहिम तुम्हारे को ज़्यादा मोहब्बत होगी अपने बच्चे से, तुम्हें अल्लाह ताला आजमा चाहते थे को मेरे से मोहब्बत है या अपने बच्चे से मोहब्बत, अल्लाह ताला इनको बताना चाहते थे, फरिश्तों को अल्लाह ताला बताना चाहते थे। तो अल्लाह ताला ने क्या कर दिया, हुक्म दिया इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कि तुम्हें अपने बच्चे को सवाल करो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे पर जाते हैं, अल्लाह ताला हुक्म देती पहले क्या बोलकर, अपने बीवी को अपने बच्चों को ले जाकर जंगल में छोड़कर, अब अपनी बीवी को हज़रत हाजरा और अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम दोनों को ले जाकर जंगल में छोड़ा, अल्लाह का हुक्म था, छोड़ता। अब वहाँ छोड़ने के बाद इनके पास, इनकी बीवी के पास थोड़ा खजूर वगैरह खाने पीने की चीज़ें, आटा वगैरह होता। अब ज़रा दिन तक काम चलता, उसके बाद वो लाइफ सब चीज़ें ख़त्म हो जाती। ख़त्म होने के बाद क्या होता, अब बच्चे को दूध देना, तो छोटा बच्चा है, अब दूध देना बच्चे का, माँ को दूध आना बोले तो माँ को कुछ खा कर आना, तो माँ खा पी पहले दूध आता माँ को भी। अब 5 भूखी है तो 3-4 दिन 5 दिन से दूध कहाँ आता उसको, तब उसके वास्ते क्या हो गया, अब इनको माँ क्या करती हुए थे, अब खाना पीना ख़त्म हो गया, पानी वाले पास से क्या करने होता है, दौड़ लगा के पहाड़, इधर एक पहाड़ आता सफ़ा का, इधर एक पहाड़ आता बाबा हजको वगैरह करते, वहाँ ये करते, सही करते, बात नहीं हो सफ़ा बाबा पहाड़ी के पास भागते। अब इन्होंने भागते पहाड़ की तरफ जाते, सफ़ा पहाड़ी के पास, क्या तो पानी भी नहीं मिलता था, तो नदी गिद्दी क्या तो गड़ा है तो पानी मिलता, पी ले तो बच्चे दूध नहीं होता। भागते बच्चे को छोड़ चले जाते, उधर जाते सफ़ा पहाड़ी पर चढ़ती, पानी की नहीं है क्या, अभियान नहीं रहते हैं, जानवर नहीं, आदमी नहीं, कौन भी नहीं रहते हो। अब देखती पानी की नहीं, काम नहीं है, फिर क्या करती, मैं इधर चल गई तो पानी के वास्ते मेरे बच्चे जगह रखा तो खा लिया तो शरीर फिर भाग लगा बच्चे के पास, बच्चा आराम है बच्चा ठीक है, फिर इधर देखेंगे और इधर जाते हैं सफ़ा पानी, इधर सफ़ा इधर नवा पानी पर भाग लेते जाते हैं, क्या तो पानी की नहीं खाना गया नहीं रहता था, फिर बच्चे को तो खा शरीर आलू भागेगा। ऐसा उनका वो भागना अल्लाह को इतना पसंद आ गया तो अगर यहाँ से समझने की बात क्या कि आदमी का अगर काम इखलास से होगा, हमारा इतना ये बयान बोलना अगर हमारा इखलास से होगा तो क़यामत तक चलता रहता, नहीं तो इखलास अगर नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, बीच में ख़त्म हो जाएगा। अगर इखलास होगा, दीन सीखना है, मुझे दीन समझाना है, मुझे अमल करना है, ऐसा अगर मेरी आप नीयत ऐसी होगी, दीन सुनना है, दीन समझना है, दीन पर अमल करना है, अल्लाह का जिक्र करना है, अगर हमें ऐसा इखलास से अगर ये काम शुरू करके करते रहेंगे तो क़यामत तक ये काम हमारा चलता रहता। मैं भी चला गया, हमारे बच्चे आएंगे, ये काम सिलसिला चलता रहेगा, यहाँ नहीं होंगे, कहाँ भी जान देंगे हमारा ये सिलसिला चलता रहेगा। नहीं इखलास नहीं होगा, लोग क्या तो बोलेंगे, लोग बड़ी मेहनत कर रहे भाई, नौजवानों में अच्छा नहीं हो रहा भाई, हमारे नौजवान समझाने तरह प्रोग्राम खास हो रहा, हमारे लिए खास बात हो रही, हमारे लिए पैगाम खास हो रही है, अच्छी बात हो रही है, अच्छा ऐसा बोलकर खाली बोल लेने के वास्ते लोग अच्छा बोलने को, अगर मेरी ऐसी नीयत है, तुम्हारी इस नीयत है बोले तो वो कभी बीच में खत्म हो जाता। इसलिए इखलास से काम करे। तो जब उन्होंने वो औरत हज़रत हाजरा उन्होंने भागे तो क्या हुआ, अब तक लोगों बच कर हज हो गए तो भाग नहीं हुआ, सही करती सफ़ा हुआ। तो जब वो उनको छोड़ को गए नहीं ना पानी लाने देखने वास्ते, पानी के वास्ते सफ़ा मरवा पानी पर, तो उन्होंने जाकर आने तक क्या करते थे बच्चे, वहाँ ऐसा करते थे, हम वहाँ ऐसा मारते थे जन्नत का। तो उन्होंने वहाँ ऐसा ये करते थे, क्या बोलते हैं वहाँ, हमने वहाँ मारने क्या बोलते हैं, छोटे बच्चे वहाँ मारते थे, सो
सो को सो कौन मारते नहीं बच्चे, क्या बोलते हैं उसे हमारी बात में खेड़े पर क्या बोलते हैं, कौन मारते थे ऐसा, क्या बोलते हैं हमारी खेड़े बात में कौन मारते थे ऐसा, सो को सा वैसा, हाँ बाबा ऐसा हालात को ऐसा मारते थे लोग सो जाते थे, तो ऐसा मारने में वहाँ बालूक थी, वो बालूक में से नहीं अल्लाह ताला पानी निकाला, बाद में उन्होंने हजरा उनके अम्मा हजरा उन्होंने क्या करती समझ पैसा कटा था अब हाथ खुद सो बड़ी खुद को ये करे सो वही जमजम का तो होता है ढका लो है दरवाजा उधर गिर दो तो ऐसा ये जमजम क्या बोलो ये हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पाँवों से निकला हुआ पानी है। वहाँ वहाँ मारते थे बचपन में रेंगते थे मारते थे तो वहाँ रेंगना का तो बच्चा ऐसा पढ़ को रेंगना नहीं है ऐसा मारते सो वैसा बचपन में ऐसा पाँव मारे सो के बरकत से अल्लाह ताला वहाँ पानी निकालते वो पानी जमजम कर दो। अब जब से अब तक पानी सड़ा क्या हो नहीं सड़ा तो कितना निकालते जाएंगे उतना पानी आता जाता रहता पूरी दुनिया के अंदर वहाँ से पानी सप्लाई होता रहता डब्बों में टिनों में कैनों में वहाँ से पानी पूरी दुनिया में जाता रहता वहाँ से लोग जाते रहते आते रहते और पानी सड़ता भी नहीं हो। एक तो पानी आता रहता दूसरा क्या पानी की क्या पानी अल्लाह की कुदरत क्या वहाँ एक तो पानी आता रहता दूसरा क्या वो पानी सड़ता नहीं कितना सारे तो मामूल पानी तो मैं बॉटल में की किस में रखो जग में सड़िया था पानी हो पाँच पकड़ता लेकिन जमजम का पानी है नहीं तो मैं कितना साल भी रखो जमजम का पानी नहीं पाँच नहीं पकड़ता तो अल्लाह के और नबी के कदमों से निकला हुआ पानी बरकत से तो अल्लाह की कुदरत है तो समझ में आ गया। तो जितना हमें खर्चा करता जाएंगे तो खर्चा करने से शैतान डराता है ज़कात देने से सदका देने से शैतान डराता है तो समझाने के लिए वाक़या बता सुनो समझ आ गया कि शैतान क्या करता है सदका खैरात करने से शैतान डराता है लेकिन अल्लाह ताला कहते हैं कि सदका करने से ज़कात देने से माल घटता नहीं बढ़ता रहता है। अब जैसा मिसाल के तौर पर सका वो जमजम का पानी अब तक कब तो कम हुआ पूरी दुनिया के लोग मुसलमान वहाँ का पानी पी रही डब्बों के अंदर टिनों के अंदर बहुत सारा पानी वहाँ का तीन ही लोग आने के अब तक खत्म नहीं होगा पानी जैसा कुएं के अंदर से गोड़ी के अंदर से पानी आता रहता है उसे निकालते रहेंगे वो आता रहेगा निकालना बंद कर देंगे तो क्या हो जाएगा वो क्या बोलते हैं वो बंद हो जाती है कचरा पड़ को ये हो जाता है उससे लोग कचरा दाना शुरू कर देंगे जो गोड़ी इस्तेमाल में नहीं आती उसे क्या कर देंगे लोग कचरा पंडी बना देंगे तो ऐसा पानी निकालते रहेंगे तो क्या होगा ताज़ा पानी आता जाएगा तो ऐसा खर्च करते रहेंगे तो क्या होगा देते रहेंगे। तो शैतान क्या कहता है शैतान क्या बोलता है खर्च करना होगा शैतान डराता है मस्जिद में है क्या बोलते हैं तो शैतान क्या करता है डराता रहता है इंसान को खर्च करना हुआ तो फकीर बन जाता है माल खत्म हो जाता है। अश-शैतानु यइदुकुमुल फ़क़्र शैतान फ़क्र से डराता है तुमको व यअमुरुकुम बिल फ़हशा और बेहयाई का हुक्म देता है। वल्लाहु को समझ में शैतान क्या होता है शैतान डराता है फ़क्र से गरीबी से फ़कीर से डराता है शैतान और बेहयाई का हुक्म देता है। वल्लाहु यइदुकुम मग़फ़िरतम मिन्हु व फ़ज़ला और अल्लाह ताला वादा करता है तुम्हारे साथ मग़फ़िरत का बख्शिश का नजात का अल्लाह ताला तुम्हारे साथ अल्लाह ताला फजल का मामला करता है वादा करता है। तो शैतान क्या करता है डराता है खर्च करना हुआ हो। अगर कोई ये बात क्यों आगे बोले तो देखो ज़कात ये देना है रोज़ा रखना है इस्लामी हुक्म है। अब आदमी एक आदमी क्या सोच रहा ज़कात देने के वास्ते या रोज़ा रखने के बारे में जैसे रमज़ान में अगर किसी को बोले रोज़ा रखो तो आदमी क्या बोल रहा भाई को रोज़ा रखना भाई अल्लाह के ख़जाना ख़त्म अल्लाह का ख़जाना खाली होगा क्या अल्लाह का ख़जाना अल्लाह की बयान ख़त्म होगी क्या अकाउंट ख़त्म हो गया क्या खत्म भी नहीं अल्लाह कहीं को रोज़ा रखो को बोल रहा अकाउंट अल्लाह का खाली होगा क्या ऐसा बोल रहा अल्लाह के बारे में इससे अभी खाते रोज़ा नहीं रख रहा तो गुनाह होगा लेकिन ऐसा अल्लाह के बारे में मजाक उड़ाएगा अल्लाह का एटीएम खत्म होगा क्या अल्लाह के बयान में ख़जाना खत्म होगा क्या ऐसा अगर बातें कहेगा तो आदमी उससे काफिर हो जाता। या फिर एक आदमी ज़कात नहीं दे रहा ज़कात उसके ऊपर वाजिब थी ज़कात नहीं दे रहा लेकिन ज़कात नहीं देते हुए फिर क्या बोल रहा हूँ कहीं को देना ज़कात बोलो हमें ज़कात देने से माल कम हो जाएगा फिर कहीं को ज़कात देना हमें ऐसा इतराज़ कर रहा ऐसा कुछ आदमी ऐसा कर रहा है तो उससे आदमी काफिर हो जाता। समझ आई नहीं दे रहा तो गुनाह होता लेकिन अगर इस्लाम के किसी हुक्म पर आदमी इतराज़ कर रहा तो फिर उससे आदमी काफिर हो जाता। अल्लाह को नहीं तो आदमी ऐसा बोल रहा भाई आदमी सबको दे दिया तो भाई अल्लाह को क्या तो भी क्या बंद हो गए थे क्या अल्लाह सो गया था क्या या फिर अल्लाह कहीं मुझे गरीब बना दिया ऐसा इस किस्म की बातें बोलने से आदमी काफिर हो जाता है। इसलिए आदमी इस किस्म की बातों से बच कर रहना चाहिए। ये सब चीज़ें कुफरिया बातें नहीं कुफरिया बातों से आदमी को बच कर रहना चाहिए इसलिए इससे आदमी का दिन खत्म हो जाता है। तो कुरान हदीस के कुल्ली वाज़ी मतलब को ना मानना कुरान में है कुल्ला
खाओ को बोल को सूद, आदमी उससे अगर खाता है इस्तेमाल करता है तो आदमी उससे काफिर हो जाता है। अगर उस खाता है आदमी लेकिन गुनाह समझता है तो उससे आदमी को गुनाह तो होगा, बहुत बड़ा गुनाह होगा, अपनी माँ से ज़िना करने के बराबर। लेकिन आदमी उससे हलाल समझकर खाता है तो फिर उससे आदमी काफिर है। खाता है गुनाह समझकर खाता है तो गुनाह होगा, लेकिन हलाल समझता है तो उससे आदमी काफिर हो जाता है। समझ में आ गया? तो इसलिए सूद, ईद वगैरह, फिटियाँ वगैरह यानी इससे बचकर रहना चाहिए। अच्छा, कुरान मजीद में जो बातें हैं, जो मतलब है कुरान हदीस में, उसमें से अपने मतलब की मानी घटना बददीनी की अलामत है, ये समझने की बात है। और बहुत सारे खुफिया जुमले बहुत सारे हैं, ये सब भी एक पता कर सकते हैं, एक औरत के बयान से नोट किया था आपने, तो वो सब चीज़ें हैं, तो उससे आदमी काफिर हो जाता है। नहीं दफा इंशाल्लाह तो, लेकिन आपके पास ये एक बात याद रखें, तो आदमी कुरान मजीद में एक अल्लाह ताला खुदा बोल दी, कुरान मजीद क्या से मालूम हो जा रहा माना मतलब, लेकिन ये भी क्या करना, अपने मतलब की बात निकाल रहा उससे मालूम हो रही, लेकिन इन क्या निकाल रहा माना मतलब बात क्या निकाल रहा है, इसके मन की बात निकाल रहा उससे, जबकि उसका मतलब कुरान मजीद का मतलब वैसा नहीं था, ऐसा नहीं निकाल रहा मतलब। तो कुरान मजीद के मतलब को अपने मन की बात, अपने मन और अपने मतलब की बात के खातिर उसे इस्तेमाल करता है, तो फिर इससे भी आदमी काफिर हो जाता है। दीन की अलामत है। मिसाल के तौर पर समझाने के वास्ते कुरान मजीद की आयत और उसके हुक्म को अपने मतलब और अपने हिसाब से उसे इस्तेमाल कर रहा, बोल ले रहा, समझाने के लिए क्या मिसाल, अगर कोई आदमी ऐसा बोल रहा, क्या बोल रहा कि अल्लाह ताला कुरान मजीद में बोल रहा, तो नमाज पढ़ना, तो नमाज के करीब जाना को अल्लाह बोल रहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलाता, अल्लाह बोल रहा कुरान में नमाज के करीब जाना को बोल को, ऐसा बोलकर नमाज नहीं पढ़ता, मैं अल्लाह बोल रहा नमाज पढ़ना बोल को, अपनी मन की बात निकल रहा है। अल्लाह बोल रहा कुरान मजीद में है तो नमाज न को पढ़ो बोल को, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, अल्लाह ईमान वालों से बोल रहा, मुसलमानों से अल्लाह बोल रहा, भाई ईमान वालों, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलाता, नमाज के करीब जाना को अल्लाह बोल रहा, इससे नमाज नहीं पढ़ता हूँ। अब इसकी मन की नमाज ही नहीं था, नमाज नहीं पढ़ रहा, तो ये क्या कर रहा वो, नमाज नहीं पढ़ने की आयत निकाल लेकर नमाज नहीं पढ़ना बोलकर बोल रहा, जबकि बात ऐसी नहीं है। अल्लाह नमाज के करीब जाओ ना, नमाज पढ़ो, अल्लाह कब बोले सो, उसके बाजू में है वो अंतुम सुकारा, जब तुम्हें नशे की हालत में होंगे, शराब पीकर है, तो उस वक्त तुम्हें नमाज के करीब जाना को अल्लाह ऐसा बोले सो। इन क्या कर रहा, अपने मन की बात निकाल रहा, आधी बात काटने को निकालने को बात बोल रहा, नमाज अल्लाह को पढ़ो बोल रहा, नमाज को तू नहीं कर रहा, तू नहीं रहा नमाज को, तो क्या बोल रहा है, नमाज को तुम्हें कहीं चीज़ नहीं आने बोलते, क्या बोलता है, अल्लाह बोल रहा हजरत नमाज पढ़ना पड़ो, कहाँ है नमाज, कहाँ है कुरान में, कहाँ है, तो कुरान में है, अल्लाह बोल रहा, कौन से बारे में नहीं फलां बारे में तो पढ़ो, बोले जुम्मा में एक बार बयान में तुम्हारा बयान रिकॉर्ड बात अगली हो, और सुनो बयान करते हाँ सुने तो आयत में थोड़े बोले सो, 5 बारे में 4वें सफ़े में हिस्ट्री निसाब नहीं बोल को, तो दिखेंगे तो हजरत हाँ बोलो वही दिखा वही बोले सो, लेकिन उसका माना मतलब क्या है, पूरी आयत पढ़ना पड़ता, पूरी बात पढ़ना पड़ता। तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलाता, नमाज पढ़ो, पढ़ना को बोलकर बोली कब, शराब की हालत में है, तो शराब पीकर है, नशे में है आदमी, तो उस वक्त ना को पढ़ो, नज़दीक जाना को बोले सो, वो बात को अपनी मतलब की बात निकाला, नमाज नहीं था, नमाज नहीं पढ़ रहा, तो क्या करेगा, अल्लाह नमाज नको पढ़ो, कब नको पढ़े बोला, शराब पी को है तो नको पढ़ो बोला ताला, शराब के नशे में है तो नको पढ़ो, नज़दीक जाना को बोला ताला, अभी क्या कर रहा, अपने मन की बात निकाल रहा है, अल्लाह नको पढ़ो बोलकर बोल रहा, तो क्या कर रहा, अपने मन की बात निकाल लेकर अपने माने पर अपने हिसाब से फिट किया, तो इससे भी आदमी बददीन हो गया। समझ जाएगी बात। ऐसा आपके लिए पैगाम कि इसलिए मैं बोलता रहता हूँ हमेशा, पहले हक को सुनो, जो लोग हक बोलते रहते हैं, हक और सच और हलफ, हमारे उलमाए देवबंद के अकीदों से उनका अकीदा जुड़ता रहता है, तो उनके बयानों को सुनो, या फिर मुझे पूछो कभी किसके बयान सुनना, तो पूछो मैं आपको बताऊंगा, या आपके फ़ोन में किसके बयान सुनना आपको मैं सब्सक्राइब कर दूंगा, उनके बयान तुम सुनते रहो, उससे फ़ायदा होगा, हमारा ईमान ताज़ा होगा, हालात हमारे को मालूम होंगे। किसके बोले उसके बयान सुनते रहेंगे तो फिर उससे आदमी को फ़ायदा नहीं होगा। एक आदमी परसों एक जगह बयान गया था, वो आदमी जिस जगह बयान को गया था वही जगह हमारे हज़रत बयान को गए थे, हमारे हज़रत मुज़म्मिल साहब, वो बयान से वहाँ से आते वक्त में हल्का असर था उसको, तो एक आदमी है नहीं, वो एक जगह बयान को गया 2-3-4 दिन पहले, जहाँ को कुरान से अब ये बात बताया नहीं, अब नमाज नहीं पढ़ने वाला आदमी क्या बोल रहा, नमाज कुरान में तो अल्लाह नमाज पढ़ना को बोलकर बोल रहा है, जबकि अल्लाह ताला नमाज पढ़ना को बोलकर बोला नहीं, वो कब बोला सो बोला ताला, शराब की हाथ में है तो न बोला सो। तो ऐसा ही नमाज पढ़ने वाला आदमी क्या बोल रहा, अपने मन की बात निकल रहा है, नमाज नहीं पढ़ रहा बोलकर क्या बोल रहा है,
नमाज घर पर पढ़ो अल्लाह से बोल रहा है, मन की बात भी कर रहा है, जबकि पूरी बात नहीं है वो, शराब के हाथ में तो नमाज का तर्जुमा अल्लाह ऐसा कर। ऐसा एक आदमी क्या कर रहा, बाद लोग हैं दुनिया के अंदर, बाद मुसलमान हमारे ऐसे है कि वो लोग हैं नहीं वलियों को मानती और वलियों से मांगती। क्या करती बोलो? वलियों को मानती और वलियों से मांगती। अब इसमें दोनों में से कौन सा जायज़ है? वलियों को मानना जायज़ है, मैं ही मानता वलियों को, लेकिन वलियों से मांगना जायज़ नहीं। समझ में आ गया? वलियों को मानो लेकिन वलियों से ना मांगो। समझ में आ गया? वलियों को मानो, बड़े बड़े हज़रत वलियाँ हैं दुनिया में आए चले गए, इंडिया में भी माउस्वानी है ना, हज़रत बहुत बड़े वली इन भी, हज़रत अबू हनीफा, बहुत सारे वलियाँ हैं। अल्लाह के खाली पुराने पीर वली नहीं, ख्वाजा गरीबुन नवाज़ नक्श वली नहीं, हज़रत सारा बंदे नवाज़ नक्श वली नहीं, बहुत सारे बंदे वलियाँ हैं। समझ में आया? हर मुसलमान, हर वो मुसलमान जो गुनाहों से बचता है, हलाल पर अमल करता है, हराम से बचता है, उनकी वली है। समझ में आ गया? अब हमें सब जगह हलाल पर अमल कर रही, हराम से बच रही, गुनाहों से बच रही, हमें भी वलियाँ। समझ में आ गया? नहीं हमें वलियाँ, हराम से बच गया तो वलियाँ आदमी हो, हराम से बच गया आदमी तो गुनाहों से बच गया, हराम से बच गया तो हमें वली। हर वो मुसलमान जो हराम से बचता है, गुनाहों से बचता है, हलाल पर अमल करता है, तो वो भी वली। तो वलियों को मानो लेकिन वलियों से ना मांगो, ये बात है। कुछ लोग मुसलमान ऐसे हैं, उन्होंने वलियों को इतना मान डालते हैं, उन्होंने उनका मर्तबा नबियों से बढ़ा डालते हैं। नबी से जाकर मानना जायज़ नहीं, मन्नतें मुराद है नहीं, लेकिन बात मुसलमान वलियों को इतना मानती हैं, वलियों के बारे में इतना बोलती हैं, उनको नबियों को मर्तबा डालती हैं, अल्लाह के मर्तबा देती हैं। उसका सब क्या करती है हमारे मुसलमान लोग? बच्चे नहीं हुई अगर आपको बहुत सारी चीज़ों में क्या करते हैं, यहाँ जाकर वहाँ जाकर वलियों के कुरान के पास जाकर सब चीज़ें करते रहते हैं। कई बार भी बुलाता हूँ, तवाफ़ नबी के मज़ार का, नबी के कब्र का तवाफ़ नहीं होता। अब नबी बड़े वली बड़े, बड़ी बड़े वली बड़े बोलो, नबी बड़े वली बड़े, वली बनता है अभी कब बोलो? नबी की इताअत करके, नबी के रास्ते पर चलकर भी वली बनता है। अभी लोग वली बने सब हम कैसा नबी के रास्ते पर चलकर वली बने सो। अब आदमी क्या कर रहा, हज़रत पिरानी के माउसमानी की दरगाह, उनके खबरिया, बहुत सब दूसरे लोगों के अखबार पर गुल दरगाह में या अजमेर पर जाकर आदमी क्या कर रहा, वहाँ जाकर उनके अखबार का चक्कर तवाफ़ लगा रहा। नबी के रोज़ा, नबी के कब्र का तवाफ़ नहीं हो रहा, जायज़ नहीं करना। अब इन वली हज़रत ख्वाजा गरीबुन नवाज़, ख्वाजा बंदे नवाज़ या दूसरे लोग भी हो वलियाँ, अब नबी के कब्र का तवाफ़ जायज़ दे दे तो अब इन नबी से बड़े क्या बोले? अब न जब तवाफ़ नहीं करें मुसलमान, उनके खबरों का मज़ार का तवाफ़ नहीं करें, बड़े समझ कर करिए सो। जब नबी के मज़ार का कब्र का तवाफ़ जायज़ दे तो इनके कब्र का जायज़ कहाँ होता? समझ बड़ी बात, पॉइंट याद रखो इसे। जब नबी के कब्र का रोज़े का तवाफ़ जायज़ नहीं दे तो फिर किसी इंसान के कब्र का तवाफ़ जायज़ नहीं, ये नुकता सही रखो। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मुसलमान वलियों को इतना मान डालते हैं, नबियों से भी आगे बढ़ा देते हैं, अल्लाह के मर्तबा बढ़ाते हैं। अब वो लोग क्या करते हैं, कुरान से बात करते हुए, बयान करते हुए क्या बोलता है आदमी, या रसूलुल्लाह बोल सकते नहीं बोल सकते, या गौस बोल सकते नहीं बोल सकते, इस पर बोल रहा हूँ, अल्लाह से बोल रहा, ईसा वैसा बोलकर कुरान से अल्लाह ताला कुरान मजीद बोल रहा, या मरियम बोलकर ईसा वैसा बोल रहा। अब मसला क्या, या रसूलुल्लाह या गौस ऐसे सब चीज़ें बोल सकते नहीं बोल सकते, नहीं बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमें या रसूलुल्लाह कब बोल सकते हैं? अब ये या का को बोल कब बोलती मैं, या का को अरबी में कब बोलती बोलो? हमें अरबी में नहीं आता, नहीं अरबी में अगर बात करें बोल लो, और किस तो अरबी लोग हमें क्या बोलते, किस तो बुलाना हो तो अरे बोलते, तो क्या बोलते अरबी के हिसाब से वो या बोलते, किस तो बुलाना है ऐसा तो किसी का नाम अब्दुल्ला है बोल लो, हम उसे बुलाना बोलिए क्या बोलते हैं, अरे अब्दुल्ला बोलते नहीं मैं, अरबी में अगर बुलाना बोले तो क्या होता हो, या अब्दुल्ला ऐसा बोलते, अरे बोलते नहीं, बस अरबी में उसे क्या बोलती, या अब्दुल्ला। अब ये या कब होता है, ये हमें अरे बोलकर कब बुलाती आदमी को, सामने तो नहीं बुलाने का, नहीं सामने तो क्या बोलती हमें, अरे बोलकर बोलती, अरे आबा, अरे अब्दुल्ला, अरे ऐसे बोलकर नाम सुलाती, अरे बोलकर बोलती, सामने है तो बोलने का, हाजिर है आदमी मौजूद है तो तब अरे बोलकर उसे नाम लेकर बुलाती। अब हमें अरबी के हिसाब से अगर ये या कब बोलती बोला, अरबी के हिसाब से आदमी हाजिर हो तो उसे या बोलना पड़ता। अब या रसूलुल्लाह बोलने का मतलब क्या हो गया, नबी को हमें हाजिर नाजिर समझ सका हो गया। नबी यहाँ है क्या, अल्लाह यहाँ है, नजर नहीं आ रहा, अल्लाह हर जगह है, नजर नहीं आता, नहीं या रसूलुल्लाह बोलने का मतलब क्या हो गया, रसूलुल्लाह भी यहाँ है तो बोल सका, नबी रसूलुल्लाह यहाँ है क्या, नहीं यहाँ नहीं, उनकी बरकत हुई यहाँ,
ان کے نام لے کر دعا کر سکتے ہیں، نبی رسول اللہ کا نام لے کر دعا کر سکتے ہیں، اللہ رسول اللہ کے توفیل صدقے میں دعا قبول فرما، ان کے صدقے اور ان کے واسطے سے ہمارے پریشان دور ہٹا دے اللہ، ایسا دعا کر سکتی ہیں. لیکن رسول اللہ یہاں ہے کو کبھی بول نہیں سکتے. تو یہ یا رسول اللہ بولنے کا مطلب کیا؟ یہاں ہے کو مان رہی ہوں. یا غوث بولنے کا مطلب کیا؟ غوث یہاں ہے وہ کو غوث کو یہاں ہے کو بول سکتا. ہم یعنی ہمیں ارے کا کب بولتی ہیں ہے تو پھر دکھا کر کے بولنے کا. اب ایسا عربی کے حساب سے یا رسول اللہ یا غوث کو بولنا ان کو ہے حاضر مانے سکتا. اب یا رسول اللہ یہاں ہے کیا؟ نہیں ہے. غوث یہاں ہے کیا؟ نہیں ہے. ان کو ہمیں حاضر ناظر سمجھ سکتا. جیسا اللہ ہر جگہ ہے، سنتا ہے، دیکھتا ہے ہر جگہ اللہ تعالیٰ، ویسا ہمیں ابو سبحانی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی، نبی کو بھی حاضر ناظر سمجھ سکتا. جبکہ اللہ تعالیٰ حاضر ناظر ہے، اللہ کے علاوہ نبی بھی ہر جگہ موجود نہیں ہے. نبی کی برکت ہر جگہ ہے لیکن نبی ہر جگہ حاضر ناظر نہیں ہے. اتنی بات ہے. اس لیے اب وہ لوگ جو ولیوں کو مانتے ہیں، ان لوگوں کیا بولتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو بول رہا یا مریم کا کو بول رہا، مطلب کیا اس کا میں ولیوں کو بھی یا اس کو بول سکتی ہیں، یا رسول اللہ کا کو بول سکتی ہیں. بول رہے یا رسول اللہ کا کو کب بول سکتی ہیں؟ جب ہمیں حج کو گئے یا عمرے کو گئے تو مدینہ کو ہمیں گئے بولے تو نبی کے قبر کے پاس میں وہاں جا کو سلام پڑھ سکتی ہیں، السلام علیکم یا رسول اللہ وہاں پڑھ سکتی ہیں. ہاں جا کو وہاں نبی کے روزے کے پاس قبر کے پاس جا کو الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ یا نبی اللہ ہمیں وہاں بول سکتی ہیں یا رسول اللہ، یہاں نہیں بول سکتی. سمجھ آ گئی نا؟ تو ایسا یا غوث یا مدد یا ایسا یا علی ایسا سب چیزیں نہیں بولنا. یا اللہ یہ بول سکتے ہیں، اللہ ہر جگہ ہے. لیکن دوسرے لوگوں کے لیے یا اللہ کے علاوہ یا غوث یا علی ایسا یا حسین ایسی چیزیں ہیں نہیں. یہ سب چیزیں استعمال نہیں بولنا چاہیے، ورنہ اس سے کیا ہو جائے گا؟ شرک ہو جائے گا. ان کو بھی، حسین کو بھی، نبی کو بھی، غوث کو بھی، ان کو بھی کیا ہو جائے گا؟ حاضر ناظر ہر جگہ موجود ہے. ایسا مانے سکا ہو جاتا. اب حضرت حسین ہو، حضرت علی ہو، نبی ہو، ولیاں ہو، عثمانی ہو، ہر جگہ ہے کیا ہو؟ اللہ کے سرکار نہیں ہے. تو پھر نہیں بولنا چاہیے یا غوث ایسے اس قسم کی باتیں نہیں بولنا چاہیے. اتنی بات ہے.